So very good afternoon to all of you. So in previous classes, we have a little bit lack uh, under the description of drug used in aquaculture. So we have discussed about that what is drugs. So in summary, just I want to skip it out that this is a biological, synthetic, or any non-synthetic agent that is taken primarily for non-dietary needs. It is not your dietary needs, isn't it? So this is basically synthesized outside, यानी शरीर के बाहर and outside the body and introduced into the diseased organism. इसमें कहीं समझने में दिक्कत नहीं है. This is derived from the word drog, that is means dried plant. Okay. So now what is the importance? Already I have discussed why we use these drugs within our aquaculture system. So all of you are knowing it well. So what is the selection criteria? We have also discussed a little bit about the selection criteria on which we have used to select these antibiotics. So I also told you that what is antibiogram. So antibiogram is an overall profile of an antimicrobial susceptibility that tests result of a specific pathogen or microorganism, isn't it? So site of action, then identification of potential pathogen and effect on microflora of fish. Then what is the seawater antibiogram and how it depends on the different cationic properties of different antibacterials and how these divalent cations are important. Which are divalent cations are important while selecting these antibiotics. So what are the site of action where these antibiotics act on? Is the intestine generally and gills, means the absorption site or the surface area which comes into contact with this antibiotics. So if we discuss about the we were also discussed a little bit about the bioavailability. So what were the bioavailability? Can anyone say? So in short, I will say that this is the a ratio or proportion of a drug or other substance that enters into the circulation when introduced in a body. Okay. So next is the identification of potential pathogens. So what are the potential pathogens? Suppose some important pathogens, they must be identified, that must be characterized, then only we can introduce the drug within an aquatic ecosystem. So how these drugs affect the microflora of fish, this is also an important factor that must known by a farmer or an individual which is using these antibiotics. Then residual effect. It should not, the residual effect, if it is, it should be minimal or less. The withdrawal period is very much important and I have already described it briefly. So withdrawal period varies with how this withdrawal period varies and how a drug is considered as a legal within a system, whether it is agriculture, aquaculture, or whatever. So okay, and how it depends, we had already discussed it. So what are the measures before treatment that we have to take? Yes, this is an important parameter that you must know being a practical student. Okay, so I will focus it on that. This is the feeding must be stopped prior 24 hours, and we have already discussed why feeding should be stopped. I hope that all of you are knowing. सभी सो रहे हो? नहीं No, सो रहे? sir. तो क्यों फीडिंग हम लोग स्टॉप करते हैं 24 आवर्स से पहले? बाकी की चीज किताबें हैं तो वो तो हमको जानना है, हम जान गए, लेकिन फीडिंग हम क्यों स्टॉप करते हैं 24 आवर्स के पहले? क्यों गुड एयरेशन चाहिए और व्हाई गुड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस aquatic drugs as well as the filters? Can anyone enlighten all those points whatever has been discussed in previous class? Rajal? सर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सर उसका ये कम हो जाता है तो ड्रग ज्यादा असर करेगा. नहीं, चीज क्या है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा एनर्जी. फीडिंग, हाँ यस सर, एनर्जी सर वो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, जब भूखे रहोगे, जब तुम फीडिंग उसका तुम डाउन कर दिए, नहीं दे रहे हो, सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, दे विल फील लाइक अ हंगर, इजंट इट?
they feel यस सर, यस hungry, they जल्दी becomes अपने hungry जाते and they will ready to attack whatever supplement is provided by you. Okay, the first thing. Second thing, good aeration should be done because there are many chemicals that are are, are very high oxidizing agents, so they reduce the oxygen level within an aquatic ecosystem. So good aeration should be done. Then water quality parameters must be an optimum level so that the drug should not be so the drug should not be dissociate. Okay, so it enables, or it just make drugs unable to dissociate very quick within aquatic system. Then filters should be removed. Why filters should be removed? Because these filters, what they do, they filter whatever particulate matters is suspended within an aquatic ecosystem. So whenever you are applying these drugs, those drugs are filtered by this carbon or any biological agents. अब हम लोग देखते हैं कि ड्रग डिलीवरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है ना। तो ड्रग डिलीवरी क्या है? दैट इज द there are different methods like oral route, injection, immersion, bathing, flushing, dipping, swabbing, topical treatment. So what is swabbing or topical treatment? Can anyone enlighten on this word? What is topical? Topical means any ointment whatever is using on the surface of any organism, जिसको ऑइंटमेंट बोलते हैं, जो स्किन के ऊपर में उसका लेप लगाते हैं, उसको हम लोग टॉपिकल ट्रीटमेंट करते हैं. देन स्वैबिंग, लाइक इफ वी डायग्नोस एनी काइंड ऑफ फिश, वी व्हाट वी डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी जस्ट swab these fishes with the 70% alcohol so that the pathogen or any microorganism associated with the fish skin, it should be removed or cleaned. ठीक है, जनरली हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में जब भी सैंपलिंग करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन से, उससे पहले हम लोग स्वैब करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. देन डीपिंग, फ्लशिंग, बाथिंग. इसमें इन लोगों तुम लोग इसको एक बार गए थे. डिड यू गेट दिस पावर पॉइंट? कोई मुझे आंसर करेगा कि ये पावर पॉइंट मिला था तुम लोगों को? यस सर, मिला था. यस सर. मिला था. तुम लोग इसको पढ़े हो एक बार? यस सर. थोड़ा सा पढ़े. ठीक है. मैं सिर्फ 1 से 2 क्लास में हमारा सारा चीज कंप्लीट हो रहा है. आई डोंट थिंक कि अब मुझे अब ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है. ओरल रूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, ओरल रूट क्या होता है? थ्रू फीड ही आप प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो इसको जैसे पैलेट फीड जो है, या फिर माइक्रो इनकैप्सुलेटेड फीड है, या लाइव फीड, जैसे आर्टीमिया इनरिच्ड फीड जिसको बोलते हैं. तो आर्टीमिया को इनरिच करते हैं किसी ड्रग कंपोनेंट में, उसको डबोते हैं और फिर जाकर के थोड़ी देर के लिए मर्ज करेंगे और फिर उस आर्टीमिया को फीड करवाते हैं. तो इसलिए लाइव फीड के भी साथ हम लोग ड्रग डिलीवरी करते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फ्लोरफेनिकोर, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाइहाइड्रेट, सल्फा डाइमेथॉक्सिन, और मिटोप्रीम, और सल्फामेराजाइन, और व्हाटएवर यू केम थ्रू इट. सो जनरली व्हाटएवर द ओरल रूट, जितना भी एंटीबायोटिक है जो टेबलेट फॉर्म में, जो पाउडर फॉर्म में देखते हो, उसको ओरल रूट में ही डालते हैं. तो इसलिए ये सब दवाइयों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. देन टारगेट वीकर फिशेस विल नॉट गेट फूड एंड मेडिसिन बट हेल्दी एक्टिव फिशेस अफेक्टेड. हाउ कैन एनीवन जस्टिफाई दिस पॉइंट? हाउ अ टारगेट वीकर फिश डिड नॉट गेट the adequate amount of drug, instead the healthy fishes get affected by the drug application. अमर्त्य है या नहीं है? क्या सर? बताओ. टारगेट वीकर फिशेस जो है वो ड्रग नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो हेल्दी फिशेस हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं. क्या पॉइंट करोगे जस्टिफाई इसमें? ओवरडोज हो जाता है सर. बाकी सभी लोग सोच के रखो. मैं बारी बारी से किसी को भी एक बार रेंडमली सेलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, यस सर. बताइए. हाँ अमर्त्य बताओ. हम लोग को एक दूसरे से बात करना चाहिए. ठीक है, instead ki we are taking a conventional classes, this is not a conventional class, but we are interacting with each other so that we can come to know where I am lacking or where you are lacking within the syllabus or this course content, but whatever. तो बताओ भाई कैसे करेंगे? अब थोड़ा बात भी कर ली, इसमें सोचने का मौका मिल गया होगा तुमको.
सर हेल्दी फिश ज्यादा एक्टिव रहता है, और जो पहले से बीमार मछली है वो एक्टिव नहीं रहता, उसका एपेटाइट भी कम हो जाता है, तो हो वेरी सकता है इसके गुड, वेरी चलते वो गुड। नहीं। हाँ बिल्कुल, जो 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 बीमार होगी मछलियां उनका एपेटाइट लॉस होगा, यस और जब एपेटाइट लॉस होगा यस तो जितना भी आपका ओरल रूट है दैट विल नॉट फंक्शनल, दैट विल नॉट बी फंक्शनल इफ यू डिलीवर थ्रू द ओरल रूट। ओके, लेकिन हेल्दी एक्टिव फिशेस अफेक्टेड हो जाते हैं। हाउ? इसमें हेल्दी मछलियां को क्या दिक्कत है? सर हेल्दी को क्यों देंगे सर? हाँ? हेल्दी को क्यों देंगे, हेल्दी फिश को? अरे भैया, आपका जो एक तालाब है उसमें बीमार भी मछलियां भी हैं, और आपकी अच्छी मछलियां भी हैं, स्वस्थ मछलियां भी हैं। तो आप जो भी ट्रीटमेंट सर, दोगे। जरूरत से उस जिसको जरूरत नहीं है उसको अगर दे देंगे तो जरूरत से ज्यादा ड्रग भी वो पॉइजन का काम करता है ना। कैसे? कैसे करेगा? सिंपल, इट्स वेरी तो उसका सिंपल। सर। इफ यू आर डिलीवरिंग यस। अ ड्रग, नो, सो द गट प्रोबायोटिक्स, जो गट प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट कंटेंट यस में सर। बैक्टीरिया होते हैं, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, कि जैसे गट में जो कुछ हमारे लाभदायक बैक्टीरिया हैं, all bacteria are not harmful. Instead, 90% of them are beneficial by any यस means. सर। ठीक है? तो जो गट बैक्टीरिया है, जो गट प्रोबायोटिक्स, हम लोग प्रोबायोटिक्स टर्म यूज करते हैं और सप्लीमेंट भी देते हैं। ठीक है? तो ये प्रोबायोटिक्स जो है, जो गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, समवेयर दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, they help to inhibit the colonization of any pathogenic agent that create havoc or panic, or that uh, create panic as a disease outbreak, isn't it? तो इस तरीके से जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो, they are not very much selective, isn't it? We have discussed it that some of the यस antibiotic they are, वो क्या होते हैं, मैं आप लोगों को 5 मोड ऑफ एक्शन बताया हूं कि वो क्या करेगा। मोड ऑफ एक्शन आप सभी लोगों को पता है, या लॉकडाउन के साथ साथ हम लोग का लॉक हो गया है सब चीज? देन देयर इज नीड टू रिफ्रेश ऑल दोस। ओके, तो आप लोग रिफ्रेश करो, हम भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है? क्या 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 था? तो सबसे पहले ये सेल वाल जो लिंकेज होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है? सेकंड क्या होता है, यस सर। एक जो दूसरे तरह के कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी दवाइयां होती है वो तो या ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम निगेटिव के लिए हम पर्टिकुलर के लिए फाइंड करते हैं, या फिर कुछ क्या होता है, राइबोसोम सिंथेसिस जो करेगी ना प्रोटीन को, तो वो इनहिबिट कर देती है एसेंशियल प्रोटीन को सिंथेसिस होने से। तो फर्दर क्या होगा, वो बैक्टीरिया डाई कर जाएगा। तो आपकी जो स्वस्थ मछलियां हैं वो भी प्रभावित हो रही है कि नहीं? क्योंकि स्वस्थ मछलियों के अंदर स्वस्थ मछलियों के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया है, इको फ्रेंडली बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है, जो प्रोबायोटिक्स है, दे विल देयर कोलोनाइजेशन विल बी हैम्पर्ड। और जब ये हैम्पर्ड होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों, इसीलिए जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं उसके साथ साथ वी मस्ट सप्लीमेंट सम काइंड ऑफ प्रोबायोटिक्स। ओके, तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखो। इवन कि हम लोग भी जब बीमार होता है तो उसके साथ साथ हम कभी अचार खाने का मन करता है कि हम लोग अपना एपेटाइट बढ़ाएं, या फिर हम दही खाते हैं जनरली, इजंट इट? दही, द कर्ड इज द rich source of lactobacillus. Lactobacillus is a probiotics that colonize within the gut, and they have many more functions. We will discuss it in other course where probiotics is there. इसके बाद हम लोग आते हैं इंजेक्शन पे। इंजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पेरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पेरेंटेरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है एनी नॉन ओरल मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन that is generally interpreted as relating to injecting directly into the body. Clear? Then second है इंट्रा, और ये जो इंजेक्शन हो सकता है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, इट मे बी थ्रू इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रावेनस, और बाय एनी मींस लाइक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या है? इसका जवाब देगा श्रीकांत। What is chorionic gonadotropin? गौतम, यस सर। क्या है chorionic gonadotropin? See, if you are सर not knowing, this is not a crime. I may not know, but the thing is whether गोनेड में जब इंजेक्शन दिया जाता है ना, good. Yes, chorionic gonadotropin क्या है?
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या होता है? दिस इज अ हार्मोन दैट कैन एबल टू इंड्यूस, क्या इंड्यूस करता है? दैट कैन एबल टू इंड्यूस व्हाट? induce Induce breeding, that can induce to breed the species. Okay, सर ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है सर? ये बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, विद इन द बॉडी. जनरली दिस इज कॉल्ड लाइक ह्यूमन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ओके, गोनेडोट्रोपिन इज रिलीज्ड बाय, हम लोग का ट्रॉपिक हार्मोन होता है और एक होता है रिलीज हार्मोन. ठीक है, GnRH रिलीज होता है, ठीक है, और दे विल एक्ट ऑन ह्यूमन में सर प्लेसेंटा से होता है ना, HCG. यस यस यस, आई एम टेलिंग यू, बस हमको कंप्लीट कर लेने तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. तो GnRH रिलीज करता है, GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वो जाकर के GTH1 और 2 को हिट करता है, स्ट्राइक करता है. GTH1 किसमें करता है काम? वो विटेलोजेनेसिस में हेल्प करता है, और GTH2 जो है वो स्पॉनिंग में हेल्प करता है. क्लियर? ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की जहां तक बात है, तो ये क्या होता है? जनरली दोज वुमेन जब विटेलोजेनेसिस प्रोसेस में होती है, जब फर्टिलाइज हो जाती हैं, तो यूरिनेशन के थ्रू जो होता है ना, ये हार्मोन ये रिलीज होता है. ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ओके, तो ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है, इसी को सिंथेसाइज भी किया जाता है. कभी कभी सिंथेटिक हार्मोन्स भी होते हैं और बायोलॉजिकल हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली वहां से एक्सट्रैक्ट करके और फिर उनको प्यूरिफाई करके और फिर हम लोग डिराइव करते हैं. तो ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो यूज किया जाता है. आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि हम लोग डिफरेंट मैं आप लोगों के एक्वाकल्चर के भी कोर्स लेने के लिए जा रहा हूँ. एक्चुअली सर ऑलरेडी टोल्ड मी दैट टू कवर सम ऑफ द टॉपिक्स. ओके, एंड बेसिकली जो आपका हैचरी और जेनेटिक वो वाला है, क्या वाला था, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके भी बारे में. ठीक है, हैचरी मैनेजमेंट है आपका, जेनेटिक हैचरी मैनेजमेंट बाय जेनेटिक्स. ओके, तो हम लोग इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, फिर बाथिंग के बारे में बात करते हैं. तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट बाथ जो है जनरली क्या होता है, 3 मिनट टू 1 डे रखते हैं. लॉन्ग बाथ जो है वो लार्ज वाटर बॉडीज के लिए. लॉन्ग बाथ मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. हम आप लोग को बार बार बताए थे, 2 चीजों का हम लोग कंसिडरेशन करते हैं जब भी हम बात बोलते हैं. कंसिडरेशन क्या होता है? एक टाइम और एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी लोअर, द टाइम पीरियड विल बी लार्जर. ठीक है, क्लियर? और जब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी हायर, देन ये आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा? लोअर होगा. ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट बात में, हाँ, इसलिए हम लोग जो जनरली वैसा होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट बात के लिए हम लोग यूज करते हैं. देन कांस्टेंट फ्लो, जैसे कि जहाँ मूवमेंट, वेव, टाइड एंड वेव्स होती हैं लेक्स वगैरह सब में, या फिर कहीं पे हम सर्कुलेशन मूवमेंट बना सकते हैं जहाँ पे रास, जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, तो वहां पे हम लोग ये सब सारी चीजें कर सकते हैं. ओके, देन फ्लशिंग, मॉडिफाइड शॉर्ट बाथ. फ्लशिंग क्या है? जस्ट यू फ्लश इट फॉर अ डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी हायर, और जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है वो हायर रहता है, और जो वाटर मूवमेंट होता है वो लगातार होता है. ठीक है ना? तो ये इसके जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई भी पैरासाइट जो चिपक करके रहते हैं आपके गिल्स पे, गिल्स पे, स्किन पे, तो इस तरह के पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए वी जनरली यूज दिस फ्लशिंग. देन व्हाट इज डिपिंग? डिपिंग इज मेंट फॉर those species which are dipped within a containment. Okay, एक कोई कंटेनर है, within a container we just dip these fishes for a short while, that is few seconds for 3 minutes. Depend, again it is depending on the concentration of drug. यही है. अब एग्जांपल ऑफ इमर्शन क्या है? फॉर्मेलिन है. फॉर्मेलिन को हम लोग फॉर्मेलिन का बात नहीं करवाते हैं. जनरली क्या होता है ना, पॉन्ड में यदि कभी भी फॉर्मेलिन का यूज कर दिए, दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल, आई एम टेलिंग यू कि जैसे सपोज कि अभी बहुत सारे श्रिम्प फार्मर्स हैं. ओके, एंड दे आर यूजिंग फीड. ठीक है, डिमांड फीडर बहुत कम ही यूज करते हैं. दे सिंपली दे यूज फ्लोटिंग फीड और वट एवर, सो सिंकिंग फीड. ठीक है, दे जनरली, अब होता क्या, उसमें जो भी फीड वेस्टेज होते हैं दैट इज सेटल डाउन ऑन द बॉटम. ठीक है, अब सेटल डाउन होने लगेंगे तो वहां क्या होगा? वहां पे आपके बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा ग्रो होने लगेंगे और फर्दर डिजीज हो सकता है. ठीक है, और ज्यादा जाने का मतलब भी है कि क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन लेवल होगा, जो अमोनिकल लेवल होगा एक्सक्रीशन के कारण, और जो फीड में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन होता है ना,
और प्रोटीन का स्ट्रक्चर यदि आप लोग बायोकेमिस्ट्री से पढ़े होंगे तो दिस इज नथिंग बट द नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल, है ना। तो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के उस फर्टिलिटी, यदि आप फीडिंग आप सप्लीमेंट कर रहे हो किसी तालाब में, ठीक है, आप यू आर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री फीड, देन यू हैव टू रिड्यूस योर फर्टिलाइजर, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर डिफरेंट टेक्निक्स। तो इमर्सन का एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मलिन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस H2O2, देन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है ये सॉल्यूशन आता है। अब जो है इनके दवाई भी आते हैं, ठीक है, जो आप लोग टेबलेट्स लेते हो। देन ट्राइकेन मेथानोसल्फोनेट्स, व्हाट इज दिस, एनीवन से श्रेया क्या है ये ट्राइकेन मेथानोसल्फोनेट, एनीवन फ्रॉम गर्ल? हेलो, सो दिस इज गोइंग टू बी अ मोनोलॉग, इजंट इट? अच्छा, लड़के में से कुछ बता पाएंगे क्या ट्राइकेन मिथान सल्फोनेट क्या है? सर वो ये सेडेशन के लिए This is the sedative or anesthetic, whatever. Okay, यस एनेस्थेटिक। good. So this is an anesthetic. तो हम लोग इसके लिए इमर्सन का यूज करते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट क्या है? दिस इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ केमिकल दैट इज यूटिलाइज्ड ऑन द इंडिविजुअल एनिमल लाइक फॉर वुंड और अल्सरेशन। अभी मैंने बताया था ना कि कभी किसी को घाव हो गया, स्किन अल्सरेशन हो गया, वुंड हो गया, तो हम लोग वहां पे इसका जनरली यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर ड्रग डिलीवरी। अब क्या होता है, कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं आप लोग यूज करते हो? KMNO4 यूज करते हो? हैव यू एवर यूज्ड KMNO4 और ओनली यू हैव हर्ड अबाउट दिस पोटेशियम परमैंगनेट? पोटेशियम परमैंगनेट तुम लोगों में से किसी ने देखा भी है या नहीं देखा है? हेलो, आप लोगों ने देखा है पोटेशियम परमैंगनेट या सिर्फ नाम सुना है? आयोडीन देखा है या नाम सुना है? देखे हैं सर। कैसा? लैब में था। आयोडीन का पाउडर कैसा होता है? उजला। वेरी गुड। और कोई? KMNO4 देखा भी है कि नहीं? लैब में यूज किए हैं सर। देखे हैं सर, याद अभी नहीं है। KMNO4 कैसा होता है? व्हाइट डिसइंफेक्टेंट होता है। हाँ, पर्पल ब्लैक सॉलिड। पोटेशियम परमैंगनेट तुम लोग नहीं सुने, नहीं देखे? सर वो स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हो जाता है। वो क्या होता है? नहीं, मुझे किताबें बातें नहीं चाहिए, हम प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं भैया। कलर कैसा होता है? काला, पीला, लाल? काला है। पर्पल ब्लैक सॉलिड। सर ब्राउन होता है सर, ब्राउन होता है। एक्चुअली दिस इज अ पर्पल कलर, ओके। ये बैंगनी देखे हो ना, बैंगनी, वो बैंगनी कलर का होता है, डीप पर्पल कलर का होता है, ओके। बैगन के कलर का। आप लोग से जब मिलेंगे, अब हमको हमारा यही काम है कि आप लोगों को हर चीज दिखाएंगे। अब सिर्फ किताब में बातें नहीं चलेंगी, ठीक है। ये महुआ ऑयल यस सर, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है सर। तो सर पोटेशियम पाउडर फॉर्म में, सर पाउडर फॉर्म में बैग नहीं रहता है। ये पाउडर फॉर्म में नहीं आते, ये जनरली क्रिस्टलाइज फॉर्म में आते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो रहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हाँ, तो उसका भी तो कलर होगा, तो उसका भी क्या कलर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, डीप पर्पल कलर होता है। एंड व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द वाटर दे बिकम्स पर्पल। डीप पर्पल से हल्का पर्पल कलर हो जाएगा इफ वी यूज वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर बेस्ड होता है, ठीक है, ओके। देन अल्कोहल बेस्ड, आयोडीन यूज किए हो कोई? आयोडीन जनरली हम लोग जो बनाते हैं, या फिर तुम लोग सरकारी अस्पताल में देखते होगे, एक वो क्या करते हैं, नहीं कोई देखे तो प्लीज गो एंड विजिट एंड टेस्ट योर कोरोना एज वेल, ओके। तो वहां क्या होता है, आपको एक देखेंगे वो लगभग गहरा भूरा कलर का, ठीक है, ऐसा करके वो ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो आयोडीन रहा है, ठीक है। और ये आयोडीन अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन होता है। व्हेन ड्रग इज नॉट वाटर सॉल्युबल, सर हर अल्कोहल। पीएचसी में उपलब्ध होगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आयोडीन जाओ कहीं भी मिल जाएगा, और बहुत आसान है एक्चुअली। ऑल ऑफ यू आर नॉट हियर, अदरवाइज मैं आप लोग को बताता बीटाडीन हम कैसे बना सकते हैं, हम लोग कि कैसे जो है वो KMNO4 बना सकते हैं। दीज आर बहुत बहुत छोटी चीजें हैं। देन ऑयल बेस्ड फॉर ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट, ठीक है। ऑयल बेस्ड में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, तो हम लोग जो एक
तुम लोग एक विक्स का यूज करते होगे माथे में लगाने के लिए, करते हो ना? ठीक उसी तरीके से एक लिक्विड आता है जो यहाँ पे दोनों एरिया में लगाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है? लिक्विड जो पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं, ब्रेन एक जब हमारा सर दर्द करने लगता है, क्या नाम है उसका? नो, दैट इज नॉट मूव। यस, इन मूव जो है ना, मूव में जो आपको एक अजब सा स्मेल आता है ना, दैट इज ड्यू टू दिस ऑयल ओनली। ओके, देन सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, व्हाट आर द सेफ्टी एस्पेक्ट्स? हाँ बोलो बोलो। सर एक तो ठंडा तेल होता है ना नवरत्न का, वो भी लगाने से तो होता है। ठंडा तेल जो होता है उसमें जनरली हम लोग पुदीना यूज करते हैं, पुदीना का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें यूज करते हैं, लेकिन जितना भी केमिकल आपका जो है ना, वो ये क्या होता है कि ये प्यूरिफाई किया जाता है। वो सिनकोना का छाल होता है, सिनकोने के छाल से हम लोग उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जो एक स्पेशल, आप देखते हो, आप डिओड्रेंट यूज करते हो ना? मालिया तेल एक होता है ना। सुनो सुनो मैं बताता हूँ, डिओड्रेंट यूज करते हो, तो डिओड्रेंट जब आप यूज करते हो तो डिओड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना, रोज या फिर अदर या फिर जो भी कुछ है, डेनिम और लदर फदर जो भी है, तो उसमें जो ये स्मेल है वो कहाँ से आता है? एक्चुअली दीज आर मतलब वो जो डिफरेंट नेचुरल एलिमेंट हैं, जैसे कोई पेड़ है, किसी का छाल है, या किसी की खुशबू, कोई फूल है, तो उसका हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसकी वजह से आता है। जैसे क्लोव में यूजिनॉल हम लोग बोलते हैं, जो महक आती है लौंग की, जो गार्लिक में लहसुन का महक आता है वो आता है एलिसीन से, ठीक है? ये सब कुछ कंपोनेंट है, केमिकल्स हैं। अभी क्या हो गया, जैसे प्याज की कमी हो गई, आप कैसे काम चलाओगे? तो नाउ देयर आर रेडीमेड एसेंस, यानी ओनियन एसेंस अवेलेबल है, गार्लिक एसेंस अवेलेबल है, ठीक इसी तरीके से ये एसेंस है। तो ये एसेंस जो है वो ऑयल ही होता है, ये दीज आर द प्लांट ऑयल्स। ओके, तो ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है। अब देखो, जब भी डिओड्रेंट यूज करोगे, इट इज रिटन ओवर देयर दैट दिस इज इनफ्लेमेबल, इजंट इट? यानी ये, इससे आप जल सकते हो यदि आसपास कहीं कुछ जल रहा हो तो, ठीक है? तो यही चीज हम लोग जनरली जो है, जो ऑयल होता है, उस ऑयल को मिक्स किया जाता है किसमें? तो अल्कोहल में। अल्कोहल जो है तो उसमें अल्कोहल जो है ना, वो ऑयल के साथ मिक्सिबल है, ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग उसके साथ मिक्स करते हैं और फिर जा करके वो एसेंस या फ्लेवर आता है, ठीक है? Then safety aspect of medicine, target species, operator, consumer, environment, that we have to take care of. That what kind of species we are going to, what kind of species are under culture, and the operator, whoever is using the drug or chemical, so it should not be used by barren hands. Instead, they must use gloves. Okay, because then again the consumer, from the consumer point of view, you have to take care of, because there are many chemical ingredients that are harmful for health, like formalin is very much very frequently used by the fishermen or farmers or sailors, generally by sailors, okay, to conserve the fishes. But the health hazard effect is that they cause cancer, means the formalin is a carcinogenic agent, isn't it? Then what are the impacts of this drug on environment? Whether it makes the microbes it makes a microbe resistant for a particular antigen or for a particular antibiotic, then it will create havoc, it will create panic within our health, from the health prospects of human as well as animal, because there are wide varieties of pathogens that are associated with water, and that can create different kind of diseases in animals as well as in humans. Those diseases, those pathogens are called zoonotic pathogen, means those pathogens which can cause disease and are transmissible from animal to human. Okay, so these are the zoonotic pathogens, so that we have to consideration. जैसे मैं सबसे पहला बात बताता हूं कि हम लोग जैसे टीबी बोलते हैं या हैजा बोलते हैं या चेचक बोलते हैं, विब्रियो कोलेरा कैन काउज हेल्थ हैजार्ड इन ह्यूमंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, कोरोना भी जूनोटिक हो जाएगा सर? ऑब्वियसली
सो लास्ट क्लास क्या हुआ था ना, आप लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि इनवर्टिब्रेट होस्ट से कैसे मतलब कोई डिजीज ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, देयर आर लेस चांसेस। आप लोग जब कोविड के बारे में जाओगे, जब इवोल्यूशनरी, मैं आप लोगों को यही बोला हूं, मैमल्स जितने भी वायरस हम में आ सकते हैं, दे मस्ट हैव टू बी मैमल फर्स्ट, ठीक है। जैसे चमगादड़ या पेंगुइन की नाम सुने तुमने, ठीक है, वो क्या है, दीज आर मैमल्स, and with the cohabitation of that particular virus, with the cohabitation of a undesired host, the virus modify themselves, they insert or delete some kind of gene and they resist, they sustain in a foreign environment, got especially RNA viruses। तो हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। These were the safety aspects of medicine that we have to take care of। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस में क्या क्या थे और क्या क्या कवर कर लिए हैं। द स्कोप एंड करंट सिनेरियो ऑफ थेराप्यूटिक्स इन एक्वाकल्चर। किसी को कोई सवाल पूछना है?